लिखा क्या? तो एक्लेसियास्टस चैप्टर 3, सबोपदेशक की किताब, उसका 3रा अध्याय 1 से 22 तक पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। Brother Wilson, could you please lead us in reading that from the English version? How to read, brother? One verse, No, but read continuously. Read for us. full, na 1 to Yeah, 22. yeah. 122. Yes, 1 to 12. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace, a time and a time to refrain from embracing, a time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What profit has the worker from that in which he labors? I have seen the God given task with which the sons of men are to be occupied. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it that man should fear before him. That which he has already been and that is to be has already been. And God requires an account of what is past. Moreover, I saw under the sun, in the place of judgment, wickedness was there. And in the place of righteousness, iniquity was there. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. For there is a time there for every purpose and for every work. I said in my heart concerning the conditions of the sons of men, God tests them that they may see that they themselves are like animals. For what happens to the sons of men also happens to animals. One thing befalls them as one dies, so dies the other. Surely they all have one breath. Man has no advantage over animals, for all is vanity. All go to one place, all from the dust, and all return to the dust. Who knows the spirit of the sons of men which goes upward, and the spirit of the animal
which goes down to the earth. So I perceived that nothing is better than that a man should rejoice in his own works, for that is his heritage. For who can bring to him to see what will happen after him? Amen. 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 So there is time for everything. जब हम लोग इस समय की बात कर रहे हैं तो ये समय को समझना जरूरी है. वी हैव टाइम बिकॉज वी लिव इन टाइम. किसी ने घड़ी बना के हमारे हाथ में थमा दिया, बोल दिया कि 24 घंटे हैं भाई आपके पास हर दिन जीने के लिए. इतने घंटों में इतने मिनट है, इतने सेकंड्स है. बहुत सारे लोगों ने इसका हिसाब लगाया और कहा कि परमेश्वर आपके जीवन में इतने सेकंड्स हर दिन डालता है, आप करते क्या? हाउ आर वी यूटिलाइजिंग आवर टाइम? सो इज द टाइम रूलिंग ओवर अस or we are ruling over the time? That is the question. तो जॉन की किताब खोलते हैं, उसका 9वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े. योना की किताब 9वां अध्याय उसका 4था वचन. नौका 4 सर। 9 का 4. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिने दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। Amen. 5वां भी पढ़ लीजिएगा. जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी से उसके अंधे को आंखों में लगाई। Yes, brother. I 4 and must 5. work, I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Amen. Amen. तो इसे अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये कहा किसने है? एक्चुअली दिस इज रेड लाइट एडिशन, रेड कलर एडिशन. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि मुझे वो काम करना है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, और ये काम मुझे तब तक निपटना है जब तक सवेरा है, उजाला है. क्योंकि अंधेरे में एक बार रात हो गई तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा. फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक मैं इस दुनिया के लिए प्रकाश हूं. इसका मतलब है कि आज की तारीख में वी आर लिविंग इन द डे लाइट. अभी रात हुई नहीं है. वी आर लिविंग इन द डे लाइट बिकॉज जीसस इज स्टिल हियर विथ अस इन द फॉर्म ऑफ द होली स्पिरिट. एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा को उठाया जाए, फिर से बुलाया जाएगा, फिर रात शुरू हो जाएगी, फिर कोई काम नहीं कर पाएगा. देन देर इज नो टाइम. राइट नाउ, आज अभी हम लोग दिन के उजाले में जी रहे. तो हमें क्या करना चाहिए? दैट इज व्हाट इज द बिग क्वेश्चन. हम लोगों के लिए परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद उजाला बनकर हमारे साथ जी रहे. तो रूलिंग योर टाइम मतलब अधिकार के साथ अपने समय का इस्तेमाल करना. कब तक कर सकते हैं और कितना करते हैं? प्रतिदिन की अगर अपनी आइटिनरी देखें, प्रतिदिन का अगर हमारा
जो समय दिया गया है उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा झांक कर देखेंगे तो हम लोग करते क्या है, कैसे आप अपना टाइम जो है, समय जो है वो मैनेज करते हैं। समय जो है, कितना समय यीशु मसीह को देते हैं, कितना फैमिली को देते हैं, कितना अपने बॉस को देते हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा किसे मिलता है। मेरा जो समय है उस समय में सबसे ज्यादा समय मैं किसे देता हूं, इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना है। तब हमें अपने समय की जो कीमत है वो समझ में आएगी। वॉट डू आई डू विथ माई टाइम। गलेशिया गलेशिया की किताब खोलते हैं, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 9 एंड 10। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय 9वां और 10वां वचन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. जरा हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा दिलीप भाई से। हम भले काम करने के में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमेन। दिक्कत अब यहाँ पे क्या आ रही है, मैं थोड़ा सा इलाबरेट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कलीसिया का फोकस जो है वो अपने लोगों पर बहुत कम है। एक बार कोई कलीसिया के साथ जुड़ गया तो फिर उसकी ओर जो थोड़ा अनदेखा ही किया जाता है। उसके वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचता है, उसके भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता है, उसकी जरूरतों के बारे में कोई नहीं सोचता है। वो तब तक सोचते हैं जब तक वो कलीसिया के साथ जुड़ नहीं जाता। एक बार जुड़ गया तो फिर उसकी तरफ देखने का जो नजरिया है वो अपने आप बंद होता है। ऑटोमेटिकली फोकस जो है वो किसी अन्य लोगों के ऊपर चला जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्यार है, जो प्रेम है, इस प्रेम को हम लोग कमर्शियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग केवल जो कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हैं उनको ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जो कलीसिया के साथ जुड़े हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार है वो अलग हो जाता है। हो सकता है कि हमारी कलीसिया में ही कोई जरूरतमंद हो, लेकिन उसकी जरूरत कोई पूरा करने की सोचता नहीं है। हम लोगों का नजर जो है वो दुनिया पर है, बाकी दुनिया पर है। वहां से किसी को खोजो, जरूरतमंद को खोजो, उसकी जरूरतों को पूरा करो ताकि वो प्रभु के पास आए। हमें उसके अनंत जीवन की चिंता नहीं है, हमें उसको सुसमाचार सुनाने की गंभीरता नहीं है। हमें बस ये देखना है, हमें बस ये करना है कि हमारी कलीसिया के कारण कोई व्यक्ति प्रभु के पास आ रहा है, हमको बस एक रिपोर्ट तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत बताया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि स्पेशली अनटू देम हु आर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ फेथ, एज वी हैव देयरफॉर अपॉर्चुनिटी, let us do good unto all, especially unto them who are of the household of faith. अब मेरा घर ही ठीक नहीं चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई ओन हाउस, द हाउस ऑफ गॉड, लेकिन मेरी नजर कहां पर है, जो मेरे घर से बाहर है उस पर है। तो उस नजरिए को थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये देखना समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि कलीसिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आत्मिक भोजन जो है वो मेरी कलीसिया के लोगों को पहले मिले और वो शुद्ध हो।
ताकि उनकी उन्नति हो, ताकि वो अपनी आत्मिक उन्नति को हासिल कर सके। और जब ये भलाई करने का मौका मुझे मिला है, आत्मिक उन्नति की सहायता देने का मौका जब मुझे मिला है, तो मुझे उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये लोग जो है वो आत्मिक उन्नति में स्थिर बने रहे। समय जो है बहुत यूनिक है, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक खुद का आयाम है। अगर हमारा घर जल जल जाता है, समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमारा खुद का घर जल गया तो हम लोग उसे फिर से बना सकते हैं। अगर आपने कहीं पैसे का निवेश किया है, बैंक में रखा है, कहीं भी रखा है, शेयर्स में डाला है और कुछ किया है, कुछ लोग करते हैं यहाँ वहां इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डूब गए, फिर भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई आपका पेट है, पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, अगर वो मर जाता है तो हम लोग नया ला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर समय चला गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। नो बडी कैन रिप्लेस इट, उसको फिर से वापस लाना मुमकिन नहीं है। इसलिए सलोमन जो है वो लिखते हैं कि हर एक्टिविटी के लिए, हर एक प्रकार के कार्य के लिए मनुष्य के पास समय है। और वो कहता है कि जो अक्लमंद है, जो बुद्धिजीवी है, वो इस समय की कीमत को जानता है और वो जानता है कि किस समय क्या करना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी में से और एक वचन को पढ़ लेते हैं। इक्लेसियास्टिस का 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन देख लेते हैं। समुपदेशक की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हम्म। He who he who keeps his command will experience nothing harmful, and a wise man's heart discerns both time and judgment. Amen. A wise man's heart discerns both time and judgment. तो हम लोगों को समय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और गंभीरता से इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की इस्तेमाल हम लोग समय के साथ, मतलब समय का जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर निर्भर है कि न्याय क्या होगा, जजमेंट क्या होगा। जीवन में कौन जीतता है? तो डायलॉग्स बहुत है इसके बारे में, जो हार कर भी जीता है उसे बाजीगर कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो एक रेस है, एक दौड़ है, ये जो दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, ये आसान नहीं है।
और ये जो एक युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, वो केवल बलशाली के लिए नहीं है। और जो कह सकते हैं कि जो भी जरूरतें हैं, धन है, खाना है, ये केवल जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, उसी के पास आता है। और पैसा जो है वो केवल अक्लमंद लोगों के पास जाता है। या परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो केवल जो लिखे पढ़े लोग हैं उन्हीं पर है। लेकिन कुछ चीजें समय के साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो लिखा है, जिस किताब में हम लोग है इक्लेसियास्टिस के, उसके 90वें अध्याय का 11वां वचन पढ़कर कुछ समझने की कोशिश करें। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्धों में शूरवीर जीतते न बुद्धिमान लोग रोटी पाते न समझने वाले धन और ना प्रवीणियों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय पर और संयोग के वश में है। I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. हम्म। तो जो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो आमतौर पर हम लोग अनदेखा करते हैं, समझने की कोशिश उस आयाम से नहीं करते हैं जिस आयाम से हम लोगों को एक्चुअली इसे देखना चाहिए। तो समय जो है उसे हम लोग एक अन्य रूप से देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर हमें 24 घंटे देते हैं सबको। ऐसा नहीं कि किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे जोड़े जाते हैं। और जो दौड़ हमारे सामने है, जो हमारे जीवन की दौड़, उस दौड़ में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अगर कोई स्विफ्ट है, अगर कोई वाइज है, वो जीतते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय का एक तरह से इस्तेमाल करता है वो जीतता है। बचपन में वो हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना, इस नीति से शायद, वो एक रैबिट और टॉर्टोइज की दौड़ लगती है दोनों की, और सबसे स्लो जो है वो जीतता है, क्योंकि ये जो रैबिट है उसका मन कहीं और है। थोड़ा सा दौड़ता है, फिर रुकता है, फिर खाना खाता है, सो जाता है। राइट, हम लोगों ने सुना था ये सबसे स्लो था टॉर्टोइज, लेकिन वो जीत गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो परमेश्वर हमें 24 घंटे प्रतिदिन दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग किस ढंग से करते हैं, किस सोच विचार के साथ करते हैं, हमारे विचार क्या है। और अगर जीवन में इस दौड़ को जीतना है तो हमें सही तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट।
इफिसियों की किताब खोलते हैं, फिर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पौलुस के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 16वां वचन, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन। Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Sorry, 16. 16 have to 16, be. या Redeeming the time, because the days are evil. आमेन। Amen. Redeeming the time because the days are evil. We are surrounded by evil. I'm telling you, हम लोग प्रतिदिन इसे देखते हैं, इसका अनुभव करते हैं कि किस तरह के समाज में हम लोग जी रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, सरकारी दफ्तर हो, बैंक हो, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हो, कहीं भी जाओ, ये जो कुछ भी है, ये जो एक ढांचा बना हुआ है आज अपने समाज का, हम लोग यहाँ पे जिन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, बातचीत होती है, हर एक का अपना अपना उसमें लाभ खोजने का एक तरीका है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ आपसे पहुंचे, या वो किसी तरह से अपना लाभ जो है वो कराए। तो हमें चाहिए, पहली बात इस चीज को समझने की जरूरत है, जो दौड़ हमारे सामने रखी है, हम लोगों को उसमें समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय जो है वो प्रेशियस है। टाइम इज प्रेशियस। इतना ज्यादा भी हम लोगों को व्यस्त नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग बन जाए जो हमको कहीं धकेला जा रहा है, दैट वी आर नो फ्लोइंग, वी आर ड्रिवन बाय पीपल। ऐसे होते हैं कि हम लोग जब किसी के विचारों को सुनते हैं, तो वो विचार जो है वो हम पर धीरे 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 अपना असर छोड़ना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी आर ड्रिवन बाय दोज थॉट्स। अपना जीवन उन विचारों को सोचकर सुनकर चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी सुनीता सिस्टर ने कहा, नॉर्थ कोरिया में जो उनका लीडर है, उसी के बारे में उनके साथ बातचीत होती रहती है। रेडियो, दे कैन नॉट स्विच ऑफ द रेडियो, दे हैव टू लिसन। हर वक्त वही बम्बार्डमेंट हो रही है 24/7 के, तुम्हारा लीडर कितना अच्छा है, तुम्हें उसी के पीछे चलना है, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, तुम और कुछ सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें चाहिए कि हमारे जीवन में सादगी हो, परमेश्वर को महिमा मिले हमारे जीवन से, और एक ऐसा माहौल हम लोगों की वजह से तैयार होना चाहिए जहां पे शांति का अनुभव लोग कर सके। और जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो उनको ये पता चलना चाहिए कि अनंत काल का जीवन का एहसास क्या है। उस एहसास को, उस टेस्ट को हम लोग अपने जीवन से लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसका अनुभव करने की एक आ, एक मौका हम लोग उन्हें दे सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटों में हमें सब चीजों का ख्याल रखना है।
बिल गेट्स जो है ना, वो का देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। बिल गेट्स कहते हैं कि जो सबसे आलसी है वो व्यक्ति कुछ शॉर्टकट निकालता है, कुछ ऐसी तरकीब खोज निकालता है जिससे काम जल्दी निपटाया जा सके। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो काम करते हैं ना, ये यही करते हैं कि ये शॉर्टकट खोजने में व्यस्त रहते हैं हमेशा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जहां पे आपको शॉर्टकट दिए जाते हैं, पूरा का पूरा सब जो है वो करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा शॉर्टकट खोज निकालते हैं जिससे सब कुछ बाईपास होता है और आप अचानक से उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने में शायद आपको घंटों का समय बिताना पड़े। तो सॉफ्टवेयर स्किल्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल? शॉर्टकट खोजो भाई, शॉर्टकट खोजो। हम लोगों को शॉर्टकट नहीं खोजना है। हम लोगों को जो 24 घंटे हमें दिए गए उनका सही इस्तेमाल करना है बस। यूज टाइम फॉर योरसेल्फ, लेकिन उसके पहले गिव टाइम टू गॉड। परमेश्वर को समय दो, अपने आप को समय दो, अपने परिवार को समय दो, अपने मित्रों को समय दो। एक बैलेंस मेंटेन करने की आदत हमें लगनी चाहिए। बट द प्रायोरिटी नंबर वन इज दैट आई स्पेंड इनफ टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, meditating upon the word of God, because that is where and from where my strength and my health comes from. जो मेरी मदद है, जो मेरी सामर्थ्य है, वो वहीं से आती है। मेरे पास 24 घंटे है लेकिन मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे पास ताकत ही नहीं है, मैं जीऊंगा कैसे? आई नीड बोथ। जब मैं इस धरती पे हूं, जब 24 घंटों का समय मुझे मिल रहा है, तो मुझे इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, अकल की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट drawing strength from the Lord. And for our strength, for our wisdom, for our knowledge, we depend on God because He is the only source. Where does my help come from? एक बहुत बड़ा सवाल जो है दावीद पूछता है, Where does my help come from? कहां से आती है मेरी मदद? तो आज के लिए यही रुकते हैं और इस विषय का और गंभीरता के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ जानने की, जांचने की, परखने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा जीवन है वो और बेहतर बन सके। और केवल बेहतर अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं, लेकिन ऐसा जीवन बन सके जिसके कारण हम लोग किसी अन्य लोगों को और लोगों को रास्ता दिखाना, बनाना या उनकी मदद करना या उनको समझाना, उनको बुझाना, इसमें भी किसी हद तक कम से कम कामयाब हो सके। तो आइए रुकते हैं आज यहीं पे और प्रार्थना करते हैं। आज सिस्टर सुनीता प्लीज क्लोज। सर किसे बोले प्रार्थना के लिए? हाँ, सिस्टर सुनीता से कहा था लेकिन सिस्टर सुनीता शायद दूर है। ब्रदर विल्सन, कुड यू प्लीज? Yeah. We'll pray, brother. या। Heavenly Father, I thank you for this beautiful day. Thank you, Lord, that you brought us united to study your word, Father. And I know, Lord, there is life, Lord. Lord, I thank you that you are encouraging us. And we know, Lord, this time with you, Lord, will be fruitful and it will direct us and lead us, Lord, the purpose for what
you have planned, Father, for each one of us. I thank you, Lord, that what peace, joy, and happiness is there, Lord, when we sit to hear your word, Father, and to hear you, Lord. And Lord, help us so that, Lord, we may grow in your word, we may be rooted and grounded in your word, so that, Lord, nothing will shake us, Lord. We'll be like standing on a rock, that is our Lord and Savior Jesus Christ. I thank you for Brother Ganesh for blessing us. And I thank you, Lord, for each and every individual of us and all our family members, Father. Those who have joined and who have not joined, bless them, lead them, guide them, Father, so that, Lord, your will and your purpose for each one of us will be fulfilled. I commit this day into thy hand. Let it be fruitful in every area of our life. Thank you for this time. In Jesus' name I pray. Amen. 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 God Brother. bless you all. सबको Yeah, परमेश्वर brother. आशीषित करे. Okay. Yes, brother. Yeah, brother, this praise God, all glory to God. Yesterday, no, Joy's results came. He completed his MBBS, brother. Praise first God, class. brother. Hallelujah. Yeah, first class. All 4 phases he has completed in first class. All 4. Oh, praise Yesterday, God. final year MBBS came and he has cleared, brother. He has cleared his in Okay. first class, brother. All glory to God, brother. Amen. Amen. Yes. Yes. Yeah, Yes. yeah. Yes. Yesterday, 4:30, the results came, brother. Wow. Wow. So Oh happy, man, brother. praise God. Congratulations, brother. Yeah, Sorry, sister. brother. No, I heard brother telling me to pray. हाँ. Ryan is traveling, so गड़बड़ में मैं नाश्ता बना रही थी, इसलिए I didn't stop. Sorry for it. No problem. No problem. We could understand that. हाँ, जल्दी फोन के पास में नहीं आ सकती, so I kept No, quiet. don't worry. Okay, brother. Praise God, brother Wilson. God bless. Yeah. All glory to God, sister. Joy. All glory. Yes. Completed. Let him use his calling for the kingdom of God. Yeah, sister. Yeah. Our people are needed. Lord's people are needed for health services, no? Doctors. Yeah. Yes, praise God. Yesterday, Thank you, Jesus. we were as a family, we were thankful to God because Praise His God, grace, brother. Praise God. grace and mercy. Really, all glory to the Lord Jesus. Yes, brother. Congratulate him from Yeah, Adi brother. Yeah, brother. Yeah. Right. Okay. So we'll catch up on Monday. Tomorrow is a holiday. After tomorrow, we'll catch up in the evening. Yeah. Are we meeting online? Are we meeting personally? Let's decide what is happening. Yeah. Decide, brother. Yes, brother. Right. Yeah. Okay. Bless you all. Yeah.